آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے بائک پر سوار ہو کر لیا شہر کے خستہ حال راستوں کا جائزہ۔ گڑھوں سے ہونے والی پریشانی محسوس کر کے اب کس طرح پہنچائیں گے شہریان کو راحت، عوام کو ہے کارروائی کا انتظار۔ ہیلتھ انشورنس کی اقساط ادا کرنے کے بعد بھی ESIC ہاسپٹل کے ذمہ داران برتتے ہیں طبی سہولتوں کی فراہمی میں کوتاہی، کمپنی ملازمین کو پریشانی کا سامنا، متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ۔ پانی کی تلاش میں جنگلی جانور کرنے لگے ہیں کھیت کھلیانوں کا رخ، کنویں پر موجود رسی میں الجھ جانے کے سبب ایک ہرن ہلاک، ایک زخمی۔ فصلوں کو نقصان پہنچنے کے بعد بھی کسانوں نے ہرن کی جان بچا کر کیا انسانی ہمدردی کا مظاہرہ۔ اور مراٹھواڑہ کے 185 تاریخی احساس حکومت کی ہیریٹیج پراپرٹیز کی فہرست میں شامل، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ شہر کے مورخین کا الزام، علاقائی کمشنر کو دیا گیا میمورنڈم۔ خبریں تفصیل سے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے آج بائک پر سوار ہو کر شہر کے خستہ حال راستوں کا جائزہ لیا اور شہریان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 4 اگست کو ونچت بہوجن آگھاڑی کے نائب شہر صدر و سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر نے بھیم نگر بھاؤسنگ پورہ کے داخلی گیٹ پر علاقے کے ساکنان کے ساتھ میونسپل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے خلاف جم کر احتجاج کیا تھا اور علاقے کی خستہ حال سڑکوں کی فوری مرمت کروانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اسی طرح 2 روز پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کارپوریٹرز اور عہدیداران نے بھی میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار مظاہرہ کرتے ہوئے قدیم شہر کے خستہ حال راستوں کی مرمت کا مطالبہ کیا تھا۔ لہٰذا شہر کی خستہ حال سڑکوں کا جائزہ لینے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے آج 2 ویلر پر سوار ہو کر دمڑی محل، کٹکٹ گیٹ، عظیم کالونی، روشن گیٹ، چمپا چوک، شاہ بازار، چیلی پورہ، لوٹا کارنجا، گھاٹی علاقہ، مکئی گیٹ، بیگم پورہ، یونیورسٹی گیٹ، نندن ون کالونی، بھیم نگر، بھاؤسنگ پورہ، پیٹھے نگر اور دیگر علاقوں کو پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سٹی انجینئر سکھارام پانزھڑے، گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے، PRO احمد توصیف، سنجے سونار اور دیگر متعلقہ افسران کے علاوہ اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے دیگر افسران بھی 2 ویلر گاڑیوں پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے مختلف علاقوں میں شہریان سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل جانے۔ آج 2 ویلر پر سوار ہو کر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے وقت انہیں کئی مقامات پر گڑھوں میں جمع شدہ پانی سے بھی ہو کر گزرنا پڑا۔ راستوں میں موجود گڑھوں کے سبب 2 ویلر چلاتے وقت ہونے والی پریشانی سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہریان کی پریشانی جاننے کے بعد انہیں راحت فراہم کروانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کیا قدم اٹھاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بجاج نگر میں موجود ESIC ہاسپٹل پر آج صبح 10:30 بجے تک قفل لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں علاج کی غرض سے آئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانگی کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف علاقوں میں ESIC سروس ڈسپنسری اور ہاسپٹل چلائے جاتے ہیں۔ خانگی ملازمین کی تنخواہوں سے ESIC کے نام پر ہر ماہ بیمہ ہفتہ بھی وضع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک ڈسپنسری بجاج نگر میں بھی قائم ہے، جہاں والوج صنعتی علاقے میں موجود کارخانوں میں کام کرنے والے لیبرز اور دیگر ملازمین علاج کی غرض سے آتے ہیں، مگر یہاں کے لاپرواہ اسٹاف کے سبب مریضوں کو کئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ان کا وقت پر علاج نہیں ہو پاتا۔ آج بھی یہ ڈسپنسری صبح 10:30 بجے تک بند رہی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض ڈسپنسری کھلنے کے انتظار میں دواخانے کے باہر بے چینی سے ٹہلتے دکھائی دیے، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ لیٹ لطیف ملازمین پر شکنجہ کسا جائے اور وہاں انتظامات درست کیے جائیں۔ مراٹھواڑہ پراچین واستو سموردھن سمیتی کے ایک وفد نے علاقائی کمشنر سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ علاقے مراٹھواڑہ میں موجود تاریخی اثاثوں کا تحفظ کیا جائے
और उन्हें खंडर होने से बचाया जाए। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि इलाक़े मराठवाड़ा में मौजूद 185 तारीख़ी असासों को हुकूमत ने हेरिटेज फहरिस्त में शामिल कर लिया है, लेकिन इन तारीख़ी मकामात की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, इसलिए फ़ौरी उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह का मेमोरेंडम मराठवाड़ा प्राचीन वास्तु संवर्धन समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को सौंपा गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कमिश्नर को पेश करदा मकतूब में इलाक़ा भर में मौजूद कई तारीख़ी मकामात व क़िलों की तफसील दर्ज की गई है और उनकी मौजूदा खस्ता हाली भी बयान की गई है और कमिश्नर से मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और उनकी जदीदकारी व मरम्मत करवाने पर तवज्जो दी जाए और यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के रास्ते पैदा किए जाएँ। इस मेमोरेंडम पर मज़कूरा समिति के संयोजक श्रीकांत उमरीकर व दीगर ओहदेदारान डॉक्टर प्रभाकर देव, डॉक्टर दुलारी कुरैशी, डॉक्टर सुरेश जोंधड़े, डॉक्टर सतीश सालुंके, लक्ष्मीकांत सोनवटकर और दीगर के दस्तखत सब्त हैं। रिक्वेस्ट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, सर्वे करें। और दूसरी बात, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट शुड आस्क फॉर मोर फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अहम बात यह है कि आर्कियोलॉजी को फंडिंग ही नहीं है, तो विदाउट फंडिंग क्या करेंगे ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम। तो आई वुड रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट to give sufficient funding, because this would help us to develop international tourism. आज दुनिया में कि बहुत सारे देश ऐसे हैं वो जो टूरिज्म पे ही है। इटाली में क्या है? नथिंग, टूरिज्म है। इजिप्ट में क्या है? जस्ट नथिंग बट जस्ट टूरिज्म। उससे भी रेयर टूरिज्म, रेयर इम्पोर्टेंस इंडिया में है, वो अगर हम डेवलप करें, यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़िया डेवलप, तो इसको टूरिज्म डेवलप करो। मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए दी गई इजाज़त अचानक ज़िला इंतज़ामिया ने मनसूख कर दी, जिसकी वजह से फेस्टिवल के सभी प्रोग्राम्स रद्द कर दिए गए हैं। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने दी। मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र अनिल शिंपी और एडवोकेट सैयद सिकंदर अली ने सहाफ़ियों को बताया कि भारतीय सिनेयुग प्रोडक्शन एंड एकेडमी मुंबई के ज़ेरे इंसराम शहर औरंगाबाद में 10-12 अगस्त के दरमियान मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद किया गया था, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता इजाज़त मिलने के बाद ऑर्गेनाइज़र्स ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की थीं। आज इस फेस्टिवल का इफ्तिताही प्रोग्राम रखा जाने वाला था, मगर ऐन वक्त पर कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने उन्हें दी गई इजाज़त मनसूख कर दी, जिसकी वजह से फेस्टिवल के सभी प्रोग्राम्स रद्द कर दिए गए हैं। फिल्म फेस्टिवल मनसूख होने पर ऑर्गेनाइज़र्स ने अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए पूरे मुल्क से कई शुरका औरंगाबाद आ चुके हैं। इस फेस्टिवल में 8 फिल्मों की नुमाइश की जाने वाली थी और सभी फिल्में सबक आमोज थीं। उन लोगों ने कहा कि आइंदा फिर कभी वो फेस्टिवल मुनक़िद करेंगे ताकि औरंगाबाद के फ़नकारों को स्टेज मिल सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट सैयद सिकंदर अली, डॉक्टर शाकिर शकील, विनोद खैरनार, यूसुफ खान, अनिल शिंपी, जगदीश कोठाले, लोहित वेरुड़ और एडवोकेट फेरोज शराफ भी मौजूद थे। दिवसभर उद्या सर्व लोक आमच्याकडे जमलेत। आज 11 तारखेला आम्ही 11, 12, 13 तारखेला 3 दिवस इव्हेंट ठेवला होता, पण आज सकाळी आणि काल रात्री इव्हेंटचे डायरेक्टर यांच्याकडे आम्हालाही फोन आले की आपण कार्यक्रम करू शकत नाही, कारण जिल्हा प्रशासनाने आपलं कार्यक्रम रद्द केला आहे। मग सकाळी पेपरमध्ये जाहीर झाली, पेपरमध्ये पुणे आम्ही प्रशासनाला दोष देणार, पण ठीक आहे, कोविड-19 मुळे आम्ही आर्थिक तर ठीक आहे, आर्थिकही झालं, पण जे लोक येणार होते, आलेले आहेत, जे डिग्निटरीज आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणून कमीत कमी इंटरनॅशनल फिल्म्स 60 ते 120 फिल्म आपल्याकडे त्यांची एंट्री झालेली आहे। त्याच्यामुळे हा आम्ही त्यांनाही दोष देत नाही। जर त्यांनी आम्हाला जर थोडं अगोदर नाकारायचं असतं तर ही आज परिस्थिती उद्भवली नसती। पिछले मार्च की मेरी डेट थी, तो मार्च में भी मुझे डेट कोविड की वजह से
आगे करनी पड़ी, उसके बाद फिर एक डेट मुझे आगे करनी पड़ी, और फाइनली जब अभी थोड़ा सब कुछ मामला थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था तो हमने फिर प्लान किया, और मैंने हमेशा सरकार के नियमों का पालन किया है। सरकार के हर आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण नाते मैं सभी प्रशासकीय अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभाते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें मेरी सिर्फ इतना कहना है कि किसी के भी साथ कोई भी अगर आप परमिशन दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे। लेकिन परमिशन देने के बाद आज आप परमिशन देते हैं और दूसरे दिन मना कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं था। खेती के रिवायती तरीक़ों से परे किसान अब जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से वक्त की बचत और पैदावार में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन खेत मजदूरों के हाथों से रोज़ी छिन रही है। क़दीम ज़माने में खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली बैलगाड़ी, हल, जूते और दीगर पुराने वसाइल और उनके इस्तेमाल करते हुए ज़मीनों की तैयारी, नागर बखर के मनाजिर शायद आइंदा कुछ अरसों में अब महज किताबों में तस्वीर ही में देखे जा सकेंगे। बैलों के ज़रिए खेत नागरनी अब करीब ख़त्म हो चुकी है, और उसकी जगह अब किसान बड़े पैमाने पर पावर टेलर इस्तेमाल कर रहे हैं। देही इलाक़ों में भी अब जदीद आलात व वसाइल ज़राअत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तालुका खुल्दाबाद के गले बोरगांव समेत अतराफ़ में बारिश पर मुनहसर खेती में भी अब क़दीम तर्ज को छोड़कर नए तर्ज पर पावर टेलर के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है, और अब इसके ज़रिए महज 2 घंटों में बग़ैर किसी झंझट के कमोबेश 1 हेक्टेयर ज़मीन पर नागर चला लिया जाता है। इसी तरह बोयाई वगैरह में भी अब यहाँ जदीद तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके सबब रोज़ मजदूरी करने वाले ज़रई मज़दूरों का डिमांड कुछ कम हो गया है, जो रोज़गार के लिहाज से ज़रई मज़दूर तबके का एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एएमसी का गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ता आज पंचक्की पहुँचा और महमूद दरवाज़े से मुत्तसिल मकानात मुनहदिम करने की कोशिश की, लेकिन साकिनान की दरख्वास्त पर उन्हें सामान हटाने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी गई। वाज़ेह है कि मखदूश महमूद दरवाज़े की मरम्मत और उससे मुत्तसिल पुल की तामीर में रुकावट बनने वाले मकानात फौरी तौर पर मुनहदिम करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी थी, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने और दीगर अफसरान गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते को लेकर पंचक्की पहुँचे और कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, मगर वहाँ के साकिनान ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम को बताया कि उन्हें अगर पहले ही से इत्तला दी जाती तो वो अपना सामान वहाँ से हटा सकते थे, लिहाजा सामान हटाने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए। दूसरे ये कि वो खुद अपने हाथों मकानात उतार लेंगे, लिहाजा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने उन्हें सामान हटाने के लिए कल तक का वक्त दे दिया, जिसके बाद एएमसी का गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ता वहाँ से लौट आया। पूर्वी इथं दुर्घटना घडली, हे जे महमूद दरवाजा आहे हे गेट याचा तुटलेला आहे, त्यामुळे तिकडं जाता येण्याचा वापर बंद झालेला असल्या कारणाने एक नागरिक त्या पाईपवरून चढून जाण्याचा प्रयत्न करत होता, त्यामुळे तो पडला आणि तो दुर्घटना घडली। आता दरवाजाच्या किंवा मॉन्युमेंटच्या संदर्भाने असे नियम आहेत की त्याच्या बाजूला आसपास अतिक्रमण झालेलं नाही पाहिजे, परंतु इथे हे अतिक्रमण केलेलं आहे। तर ते अतिक्रमणधारकांशी मी आत्ता बोललो, ते स्वतः समजदार दिसले, ते म्हणे की मी स्वतः हे पूर्ण अतिक्रमण काढून देतो आणि आपण सोमवारी म्हणजे उद्या तुमची टीम पाठवा आणि आपले तुमच्या टीमच्या माध्यमातून ते तोडून टाका। त्यांना आजचा दिवस वेळ दिलेला आहे सामान काढण्यासाठी, ते स्वतः सामान काढून घेतील, आमची टीम उद्या येऊन ते डिमॉलिश करून टाकेल। धन्यवाद। आणि त्यामुळं नागरिकांना येण्या जाण्यासाठी सवलत पण होईल। तिथं छोटासा आम्ही पूल पण बांधून घेऊ, जेणेकरून नागरिक कमीत कमी पायी तरी आले गेले पाहिजे, जेणेकरून ही यापूर्वी जी दुर्घटना घडली तशी दुर्घटना घडणार नाही। पानी की तलाश में आए 2 हरन कुएं पर मौजूद रस्सी में उलझ कर रह गए, जिसके सबब एक हरन की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हुआ।
ताल्लुका सिल्लोड़ के बोझगांव में पेश आई इस वारदात से फिर एक बार साबित हो गया है कि जंगल में जंगली जानवरों को अब पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। तभी तो ये दो हरन पानी की तलाश में खेत पर वाक़े इस कुएं पर आए थे, मगर कुएं से करीब लगी रस्सी में पैर उलझ जाने के सबब एक हरन मर गया और दूसरा शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बोझगांव के किसान माधवराव शेलार के खेत में अदरक की फसल बोई हुई है। कुएं पर आए ये हरन पानी के हुसूल के लिए शायद लड़ पड़े और इसी दौरान वो रस्सी में उलझ कर रह गए। शेलार कुएं की तरफ आए तो उन्होंने ये माजरा देखा और फौरी अपने पड़ोस के गजानन शेलार व कृष्णा शेलार को इत्तला दी। ज़ख्मी हरन को रस्सी से छुड़वा कर उसे पानी पिलाया गया और फिर फौरी महकमा जंगलात को इत्तला की गई। इन किसानों की समझदारी से ज़ख्मी हरन को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा फौत हो गया। साकिनान का मुतालबा है कि जंगल के जानवरों की गिनती करवा कर यहाँ जंगलों में पानी का बंदोबस्त करवाया जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जम्बू वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब यौमिया 300 अफराद का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक 18 साल से ऊपर की उम्र के ज़मरे के शहरियान के लिए गो के जम्बू वैक्सीनेशन मुहिम जारी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत के सबब यौमिया 300 अफराद का मौके पर ही इंदराज किया जाएगा और उन्हें कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन की ये टीका अंदाजी क्रांति चौक हेल्थ सेंटर, राजनगर हेल्थ सेंटर और MIT हॉस्पिटल पर N4 अंबिका नगर हेल्थ सेंटर के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक की जाएगी। प्रेस नोट में ये भी वजाहत की गई है कि कोविशील्ड वैक्सीन के पहले व दूसरे डोज सिर्फ प्रोजोन मॉल के वैक्सीनेशन सेंटर पर ही दिए जाएंगे। लिहाजा मुताल्लिका कोविशील्ड डोज लेने वाले शहरियान दीगर टीका अंदाजी मराकिज़ पर आने या हुजूम जमा करने की जहमत न करें। इस तरह की अपील मुताल्लिका इंतज़ामिया ने की है। छत्रपति शाहू महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में एक्सचेंजर कंपनी की जानिब से मुनक़िदा ऑनलाइन कैंपस इंटरव्यू में 16 तलबा मुंतखब करार दिए गए। इस ऑनलाइन कैंपस इंटरव्यू में कॉलेज के इंजीनियरिंग के आखिरी साल में ज़ेर तालीम 16 तलबा का इंतखाब किया गया, यानी साल 2021 की बैच के 16 तलबा अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के ओहदों के अहल होंगे। इन तलबा को सालाना 4.5 लाख रुपयों के पैकेज दिए जाएंगे। इन अहल करार पाए गए तलबा में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की शिवानी जाधव, आदिति पाटिल, अमृता देसले, दीपक सातपुते, क्षितेज भोंसले, मयूर सोनौने, सिविल इंजीनियरिंग के सूरज दोरखे, मुश्तबा खान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अबोली जाधव, ऋतुजा फुलारे, सुमेक्षा तुपे, कौरक्ष नाथ जाधव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन की अनंत चौधरी, अंजलि जोगदंड, अश्विनी मालवाले, वाभी रुचि जगताप और दीगर शामिल हैं। इस साल कोरोना वबा के हालात के सबब इंटरव्यू और इंतखाब का अमल ऑनलाइन तरीके से मुकम्मल किया गया और अहलियत का चुनाव 4 मरहलों में पूरा किया गया, जिसके फाइनल राउंड में टेक्निकल एंड HR इंटरव्यूज़ मुनक़िद किए गए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा एक्सचेंजर कंपनी का हेड ऑफिस आयरलैंड में वाक़ है और दुनिया भर के 120 ममालिक में कंपनी के दफातर मौजूद हैं। भारत में ये सॉफ्टवेयर के मैदान की मुमताज़ कंपनी कहलाती है। मज़कूरा 16 तलबा को उनके इंतखाब पर छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के सदर इंजीनियर रंजीत मुड़े, सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े, इंजीनियरिंग शोबे के प्रिंसिपल उल्हास बी शिंदे और दीगर ओहदेदारान व असातिज़ा ने मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताल्लुका खुल्दाबाद के वो किसान जो पाबंदी के साथ उठाए गए कर्ज की अक़सात अदा कर रहे हैं, उन्हें नए सिरे से लोन देने की शुरुआत कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से ताल्लुक़े के बाज़ार सावंगी, एलोरा, गल्ले बोरगांव, बोड़खा और सुल्तानपुर ब्रांचेस के तहत मुख्तलिफ सोसाइटियों की मारिफत उठाए गए कर्ज
کی واپسی کرنے والے 4,362 کسانوں کو 20% اضافی شرح سود پر 3 کروڑ روپیوں کے قرض دیے جانے کا آغاز بینک کے ڈائریکٹر کرن پاٹل ڈونگاؤکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر تعلقہ صدر انیل پٹیل، شری کھنڈے، ضلع کے اقلیتی شعبے کے صدر مظہر پٹیل، پانڈورنگ ویتال، شیخ علاؤدین، وشال ساکھرے، تکارام ہاردے، وکرم چوہان، ہیرا لال راجپوت، ذاکر شاہ، اتم پاڑسوان، مادھو لونڈھے، بالا کرشن لونڈھے، مختار پٹیل، یعقوب پٹیل، وجے جادھو، چیئرمین سرجے راؤ لونڈھے و دیگر نامور افراد و بینک کے ممبران کثیر تعداد میں موجود تھے۔ خواتین بچت گروپس کے ذریعے جن خواتین کو قرض فراہم کیے جا رہے ہیں وہ اس کا صحیح استعمال کریں اور جس کام کے لیے قرض لیا جا رہا ہے وہ اسی پر خرچ کریں، یہ اپیل بینک آف بڑودہ کے علاقائی آفیسر راجیش ڈونگرے نے کی۔ موضع گنوری میں واقع بینک آف بڑودہ کی شاخ کے تحت 27 خواتین بچت گٹوں کے لیے 51,50,000 روپیوں کا قرض منظور کیا گیا ہے، لہذا علاقائی دفتر کے آفیسر راجیش ڈونگرے، برانچ مینیجر یوگیش گیتے و ہتیش سکھدیو کے ہاتھوں ان بچت گٹس خواتین کے ذمہ داران میں سینکشن لیٹر تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر راجیش ڈونگرے نے حاضرین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ قرض کا اگر خواتین صحیح استعمال کریں تو وہ اپنے خاندان کی معیشت کو بہتر اور مستحکم بنا سکتی ہیں۔ ان قرضوں سے وہ گاؤں سطح پر اپنے چھوٹے موٹے کاروبار اور صنعتیں شروع کر سکتی ہیں اور قرض کی بہتر طریقے سے واپسی کے ذریعے اپنے بچت گروپس کو بھی مستحکم بنا سکتی ہیں۔ اسٹریٹ فار پیپل چیلنج نامی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کیناٹ پیلیس علاقے کے تاجروں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ تاجروں کی ایسوسی ایشن نے میونسپل کارپوریشن اور ASCDCL کو کیناٹ کے راستوں کی بہتری و تبدیلی کے لیے تعاون دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ASCDCL اور میونسپل کارپوریشن نے اسٹریٹ فار پیپل چیلنج کے تحت اسٹریٹ ٹرانسفارمیشن کے لیے کیناٹ کی اسٹریٹ کا انتخاب کیا ہے۔ گزشتہ روز منگل کو ASCDCL نے کیناٹ پیلیس کے بیوپاری سنگھٹنا کے ساتھ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں میونسپل کمشنر و اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے CEO آستک کمار پانڈے، ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے، اسسٹنٹ کمشنر نند کشور بھومبے، سٹی انجینئر سکھارام پانزھڑے، ٹاؤن پلاننگ کے ڈپٹی انجینئر سنجے کومبڑے، ASCDCL کے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر اسنیہا نائر، اسنیہا بخشی، کرن ادھے، ارپیتا شرد، پلوی دیورے و دیگر موجود تھے۔ میٹنگ میں ASCDCL کی جانب سے راستے کی تبدیلی کے لیے مجوزہ ڈیزائن پیش کیا گیا، جس میں فٹ پاتھ، پارکنگ اور راستے کی تزئین و آرائش کے لیے جگہوں کا انتخاب شامل تھا۔ کمشنر پانڈے نے دکانداروں سے کہا کہ کیناٹ علاقے میں نظام ٹریفک درہم برہم ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا مارکیٹ ٹکا رہے تو یہ ایک بہتر موقع ہے جس کے ذریعے یہاں کا راہداری کا نظام سدھر جائے گا۔ شہر کے نئے DP پلان کی تیاری کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں اسٹیٹ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر رضا خان نے گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے ملاقات کی۔ پچھلے کئی عرصے سے التوا میں پڑے اور چرچا میں رہے شہر کے ڈیولپمنٹ پلان کے لیے DP یونٹ کے چیف اور اسٹیٹ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر رضا خان نے اپنے معاونین کے ساتھ گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کی تو میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے اس DP یونٹ کے لیے سردار وکرم سنگھ اوبرائے میٹنگ ہال دفتر کے لیے دیا ہے اور اب جلد ہی شہر کے نئے DP پلان تیار کرنے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے یہ بھی ہدایت دی کہ تمام تر جدید وسائل و مشینری کا استعمال کرتے ہوئے یہ پروجیکٹ اندرون 6 ماہ مکمل کر لیا جائے۔ واضح ہے کہ DP پلان سے متعلق سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ شہر کی ترقیات کے لیے DP یونٹ کا تقرر کر کے ان کی معرفت ترقیاتی پروجیکٹ تیار کروایا جائے اور اسی حکم پر عمل آوری کے تحت میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر نے DP یونٹ آفیسر کے تقرر کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی، جس پر یونٹ کے ہیڈ آفیسر
के बतौर स्टेट टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर रजा खान ने अपने माविनीन के साथ कमिश्नर से मुलाकात की, जिसके बाद सरदार विक्रम सिंह ओबेरॉय दालान में कंप्यूटर, फर्नीचर व दीगर सहूलियात से आरास्ता दफ्तर इस यूनिट के लिए उन्हें अलॉट किया गया है। हनुमान नगर इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन को फाजिल अदालत ने आइंदा सनीचर तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि 9 अगस्त की रात हनुमान नगर इलाके में आकाश राजपूत नामी नौजवान का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में 4 नौजवानों और एक खातून के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिन्हें पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार करके गुज़िश्ता रोज़ कोर्ट में हाजिर किया। समाअत के बाद फाजिल अदालत ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन गणेश तनपुरे, ऋषिकेश तनपुरे, संदीप जाधव, राहुल पवार और मंगल तनपुरे इन 5 को सनीचर तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। इस मामले में पैरवी करते हुए असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर गौतम कदम ने जांच के लिए मुलजिमीन को पुलिस कस्टडी में रखने के लिए फाजिल जज DS वमने से दरख्वास्त की थी, जिस पर फाजिल अदालत ने उनकी अपील को कबूल करते हुए ये फैसला सुनाया। रविंद्र नगर शाहबाजार इलाके में एक 22 साला नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। महलूक का नाम सागर अंसाराम बहीलम बताया जा रहा है, जो पेशे से मजदूर था। खुदकुशी से पहले उसने अपने बड़े भाई की सालगिरह की पूरी तैयारियां की। सबके साथ घुल मिलकर और खुशियां मनाने के दौरान ही वो उठकर घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर फांसी लेकर अपनी जान दे दी। बड़े भाई ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा और ना ही अंदर से सागर ने कोई आवाज़ दी, तो उसने पड़ोसी की छत से देखा तो पता चला कि सागर फंदे पर झूल रहा था। जिनसी पुलिस ने इस मामले का इत्तेफाकी वारदात के तहत इंदराज कर लिया है। खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आ सकी है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के ऐन सामने एक होटल में प्लॉट के तनाज़े को लेकर एक शख्स के साथ मारपीट की गई। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। शेख नवाब हैदर पटेल की फरियाद पर जवाहर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसके मुताबिक मज़कूरा पुलिस स्टेशन के सामने वाक़े चाय के स्टॉल पर सैयद शब्बीर सैयद नूर ने कब्ज़ा करके यहाँ तामीरी काम कर रखा है, जिसके मुतालिक दीवानी अदालत में मामला ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता शाम 7 बजे के करीब फरियादी के साथ उसके दोस्त हेमराज व शेख मूसा इस चाय खाने पर चाय पी रहे थे कि बशीर होटल में आया और उसने फरियादी से तुम मेरे होटल में क्यों आए कहते हुए उसके साथ गाली गलौज की। फरियादी शेख नवाब उसे समझाता रहा। इसी दौरान मुलजिम बशीर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। नवाब हैदर के होंठ पर मुक्का पड़ जाने से खून बहने लगा तो उनके दोस्त ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और शेख हैदर को घाटी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जबड़े में फ्रैक्चर हो जाने का खुलासा किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बाइक पर सवार होकर लिया शहर के खस्ताहाल रास्तों का जायजा। गड्ढों से होने वाली परेशानी महसूस करके अब किस तरह पहुंचाएंगे शहरियान को राहत। आवाम को है कार्रवाई का इंतजार। हेल्थ इंश्योरेंस की अक़सात अदा करने के बाद भी ESIC हॉस्पिटल के जिम्मेदारान बरतते हैं तिब्बी सहूलतों की फराहमी में कोताही। कंपनी मुलाजमीन को परेशानी का सामना। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। पानी की तलाश में जंगली जानवर करने लगे हैं खेत खलिहानों का रुख। कुएं पर मौजूद रस्सी में उलझ जाने के सबब एक हरन हलाक, एक जख्मी। फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद भी किसानों ने हरन की जान बचाकर किया इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा। और मराठवाड़ा के 185 तारीखी एहसास हुकूमत की हेरिटेज प्रॉपर्टीज की फहरिस्त में शामिल, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। शहर के मौरखीन का इल्जाम, इलाकाई कमिश्नर को दिया गया मेमोरेंडम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।